पाटन में चांदीपुरा वायरस का पहला मामला सामने आया है। इसी बीच विधायक किरीट पटेल ने सिविल हॉस्पिटल का दौरा भी किया। गुजरात के पाटन जिले में चांदीपुरा वायरस का पहला मामला सामने आया है, जिसमें 7 साल के बच्चे को वायरस का संक्रमण लगा है, जिसका इलाज धारपुर की GMERS हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर चल रहा है। सरस्वती तालुका के मोटानायता गांव के बच्चे का रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग ने भी गांव में दवाई का छिड़काव समेत की कार्यवाही शुरू कर दी है। चांदीपुरा वायरस के मामले के बीच पाटन के विधायक किरीट पटेल ने धारपुर के सिविल हॉस्पिटल का औचक दौरा किया। मरीजों की विभिन्न समस्याओं की जानकारी मिलने पर कांग्रेस विधायक खुद अलग अलग वार्ड में पहुंचे और मरीजों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा भी की। यहाँ अस्पताल में चलाई जाती कैंटीन द्वारा मरीजों को दिए जाते भोजन की गुणवत्ता मामले विधायक को शिकायत की गई थी, जिसके बाद फूड विभाग के कर्मचारियों के पास विधायक किरीट पटेल ने सैंपल लेकर जांच शुरू करवाई है। इस मामले ठोस कार्यवाही नहीं होने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा कॉन्ट्रैक्टर पर योग्य कार्यवाही करने की मांग करते हुए धरना देने तक की बात कही है। છેલ્લા ઘણા સમયથી ધારપુર GMERS મેડિકલ કોલેજની વિવિધ બાબતોને લઈને મને ફરિયાદો મળતી હતી। એની સફાઈની બાબત હોય, જમવાની બાબત હોય, મુખ્ય દરવાજો બંધ કરવાની બાબત હોય, ઘણા દર્દીઓને પૂરતી સારવાર ના મળતી હોય, આ બાબતની ફરિયાદ થતો આજે તાત્કાલિક મેં 7 વાગે ધારપુર મેડિકલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધેલી। ત્યાં જમવાનું આપવામાં આવતું હતું। મેં ચેક કર્યું તો માત્ર ખીચડી અને પાણી જેવું શાક અને પાણી જેવું દૂધ એ જમવામાં આપતું હતું। જે પ્રમાણે રેકોર્ડ હતો એ ડબલ કરતાં પણ વધારે બતાવવામાં આવ્યો હતો। જે કોન્ટ્રાક્ટર છે પણ કોન્ટ્રાક્ટર બીજા સબલેટ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા આ બધું કામ કરવામાં આવતું હતું। AC પણ બંધ હતા, મુખ્ય દરવાજો બંધ હતો। આ બાબતે મેં દૂધનું સેમ્પલ લઈ અને ડેઝિગ્નેટેડ ઓફિસર જોડે વાત કરી છે અને એના સેમ્પલ માટે એમને અહીં રૂબરૂ પણ બોલાવ્યા છે। આ તમામ બાબતે તપાસ કરતાં મેં માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ઋષિકેશ પટેલ જોડે પણ વાત કરી છે, એના CO શ્રી ગોસાઈ સાહેબ જોડે પણ વાત કરી છે ને એમને આ તમામ બાબતનો રિપોર્ટ મને આપવા કહ્યું। જમવાના લિસ્ટની અંદર જે પ્રમાણે મેનુ બતાવવામાં આવ્યું છે, સાંજે 3 દિવસ ખીચડી અને દૂધની સાથે ભાખરી આપવાની, સવારે મગ અને ગાયનેક વોર્ડની અંદર શીરો આપવાનો। તમે તપાસ કરી શકો છો કે એક પણ દિવસ ભાખરી આપવામાં આવી નથી 1 વર્ષની અંદર। અને જમવાની અંદર તમે દર્દીઓને પૂછી શકો છો શીરો કે મગ પણ આપવામાં આવતો નથી। માત્ર લોકોને ના ગમે ના ભાવે એવું જમવાનું પીરસવામાં આવ્યું છે। કેટલાક દર્દીઓ જમતા પણ નથી। આંકડાની શું માહિતી છે? જે રજિસ્ટરની અંદર 11ની સંખ્યા લખવામાં આવી હતી તેમાં માત્ર 6 પેશન્ટ હતા। જે રજિસ્ટરની અંદર મહિલા વોર્ડની અંદર 85 દર્દી બતાવવામાં આવ્યા હતા, ત્યાં ઇન્ડોર દર્દીઓ માત્ર 34 હતા। કોન્ટ્રાક્ટરના કહેવા મુજબ એના સગાઓને જમવાનું આપવામાં આવે છે, સગાઓને એક પણ દિવસ જમવામાં આવતું નથી। આ બધી તમામ બાબત એના RMO અને ડેપ્યુટી RMO અને કન્સર્ન સિસ્ટર જોડે પણ વાત થઈ છે। गुजरात के सुरक्षित माने जाते वडोदरा शहर में अब आम लोगों के साथ साथ ज्वेलर्स भी तस्करों का निशाना बन रहे हैं। कल ही वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके में लाडला ज्वेलर्स में चोरी की वारदात सामने आई थी। उस मामले का पर्दाफाश भी नहीं हुआ है कि अब कारेलीबाग में मुख्य मार्ग पर स्थित श्रीजी ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना घटी है। कारेलीबाग में चोरों ने सोने चांदी के गहनों के साथ साथ DVR और CCTV कैमरे की भी चोरी कर ली। तस्करों ने गैस कटर से सेफ तिजोरी तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर जो हाथ आया वो लेकर चोर फरार हो गए। घटना की जानकारी कारेलीबाग पुलिस को दी गई है। पुलिस अगल बगल में लगे CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। आनंद नगरनी सामेनो विस्तार है, श्रीजी ज्वेलर्स से मारी दुकानનું નામ। સવારે 6:30 વાગે ભાઈના શાળાએ ફોન કર્યો કે તમારે આ રીતનું શટર અટર થઈ ગયું છે, એટલે અમે ચેક કરવા આવ્યા। એમાં ગેસ કટરથી બધું તાળા ને બધું તોડી કાઢ્યા છે। 10 તાળા મારેલા હતા, શટર ને બધું તોડી નાખ્યું, અંદરની શેપ ને બી બધું ગેસ કટરથી કટ કર્યું છે। મુદ્દા માલમાં હજુ જોવાનું છે મારે કે શું છે શું નહીં। ચાંદીનું ને સોનાની વસ્તુ ગઈ છે, એ બધું જોવાનું છે મારે હજુ। गुजरात के वडोदरा के महानगर पालिका के पदाधिकारियों के केबिन में कौन कौन आता है, इसकी जासूसी CCTV कैमरे के जरिए की जा रही होने की खबर सामने आई है। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका का कोई न कोई विवाद अक्सर सतह पर आता ही रहता है। ऐसा ही एक विवाद CCTV कैमरे को लेकर हुआ है, जिसमें स्थायी समिति अध्यक्ष के केबिन में CCTV कैमरे का
एक्सेस दिए जाने पर विवाद सामने आया है। डिप्टी मेयर की केबिन के सामने लगे हुए सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस लेने पर आपत्ति सामने आई है। डिप्टी मेयर के केबिन में अंदर कौन बैठा है, ये भी सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा होने से डिप्टी मेयर ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद कैमरे का एंगल बदलने की बात कही गई है। लेकिन इस मसले पर पूछे जाने पर डिप्टी मेयर ने एक्सेस की आपत्ति से इनकार किया है। મારી કોઈ રજૂઆત છે નહીં. આ કેમેરો લાગેલો હતો એ પણ મને તો ખબર નહોતી, પરંતુ ચિંતનભાઈની ઓફિસમાં આનો એક્સેસ હતો એ ખબર હતી. અને ક્યારથી ચેરમેનને એક્સેસ મળ્યો, મેયરશ્રીને ઓફિસમાં મેયરશ્રીનો તો અધિકાર છે એક્સેસ લેવાનો, તો એનો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં. અને ચેરમેનશ્રીએ પણ જો એક્સેસ લીધો હોય તો મને ખબર નથી. હવે કેમેરા તો બધે જ લાગતા હોય છે, આપણી પ્રિમાઇસીસમાં પણ લાગેલા છે, પણ એનો એક્સેસ કોની જોડે છે એના ઉપર આ બધો આધાર રાખતો હોય છે. એ મને અત્યારે ખબર પડી કે 5 હોદ્દેદારોને એક્સેસ આપવામાં આવશે, પરંતુ મારે કઈ જરૂર નથી. પણ દરેક પદાધિકારીને જાણમાં હોવું જોઈએ એવું માનું છું. કેમેરા દરેક જગ્યાએ કોઈ પણ મેડમે કીધું એમ સરકારી ઓફિસોમાં, પ્રાઇવેટ પ્રિમાઇસીસમાં દરેક જગ્યાએ પોતાની સેફટી માટે બધા લગાવતા હોય છે, અને એવું જ અહીંયા લાગેલા છે, એટલે એનો કોઈ વિરોધ નથી મારે. केरल में हुए भयावह लैंडस्लाइड के बाद वायनाड से चुने गए सांसद राहुल गांधी और भविष्य की सांसद प्रियंका गांधी पीड़ितों से मिलने वायनाड पहुंचे। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 276 हो गई है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 240 से ज्यादा लोग आज तीसरे दिन भी लापता हैं। मौसम विभाग ने आज गुरुवार को फिर से वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने फिर से कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा जताया है। ड्रोन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्नीफर डॉग्स के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केरल के चुरलमला पहुंचे। लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ है। यहां विजिट के बाद दोनों ने रिलीफ कैंप जाकर पीड़ितों से मुलाकात भी की। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी। अब प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ने वाली हैं। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રેન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात का वडोदरा शहर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम के साथ साथ क्रिकेट जगत में दिए गए योगदान के लिए भी जाना जाता है। आज वडोदरा के क्रिकेट जगत ने एक बड़ा सितारा खो दिया है। पिछले कई वक्त से वडोदरा के पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ ब्लड कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और 71 साल की आयु में उनका दुखद निधन हुआ है। हाल ही में अंशुमन गायकवाड़ काफ़ी चर्चा में आए थे क्योंकि कई बड़े पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने उनके लिए BCCI से गुहार लगाई थी, अपना पेंशन तक उनके इलाज के लिए खर्च करने तक की तैयारी दिखाई थी और उसके बाद BCCI ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। आज जब अंशुमन गायकवाड़ को वडोदरा आखिरी विदाई दे रहा है तब उनके साथी, उनके समर्थक, उनके रिश्तेदार उनके आखिरी दर्शन के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं। भारत के क्रिकेटर और टीम इंडिया के पूर्व कोच अंशुमन गायकवाड़ का गुजरात के वडोदरा में दुखद निधन हो गया है। 71 साल के गायकवाड़ लंबे समय से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। अंशुमन गायकवाड़ की हालत देख विश्व विजेता कप्तान कपिल देव भी मदद के लिए आगे आए थे। उन्होंने दूसरों से भी मदद की अपील की थी। इसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अंशुमन गायकवाड़ के इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। उनका इलाज इंग्लैंड के अस्पताल में चल रहा था। अंशुमन गायकवाड़ ने भारत के लिए 1974 में डेब्यू किया था। उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट और 15 वनडे मैच खेले। 1970 के दशक में गायकवाड़ और सुनील गावस्कर की जोड़ी हिट थी। गायकवाड़ ने अपने टेस्ट करियर में 1985 रन बनाए। उन्होंने 1983 में पाकिस्तान के खिलाफ 201 रन की बेहतरीन पारी खेली, जो उनका सर्वोच्च स्कोर भी रहा। अंशुमन गायकवाड़ 1975 और 1979 के वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया का हिस्सा थे। आज भले ही क्रिकेट प्रेमी राहुल द्रविड़ को वॉल के रूप में जानते हों, लेकिन 1970 के दशक में अंशुमन को ही द ग्रेट वॉल कहा जाता था। वे अपनी डिफेंसिंग बैटिंग से विरोधी बॉलिंग अटैक को कूंद करने में माहिर थे। अंशुमन गायकवाड़ करीब 2 साल तक भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रहे। भारतीय टीम ने उनके कोच रहते ही 1998 में शारजाह में त्रिकोणीय सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अंशुमन उस टीम इंडिया के भी कोच थे जो 2000 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में उप विजेता रही थी। उस टीम के कप्तान सौरव गांगुली थे। उनके निधन की खबर से भारतीय क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। वडोदरा के निजी अस्पताल में निधन के बाद आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई।
वडोदरा ने आज एक उभरता क्रिकेट सितारा खो दिया है, जिनके अंतिम विदाई में आज बहुत सारे लोग वडोदरा के अग्रणी उमड़ रहे हैं। काशी मुनिया वडोदरा के अग्रणी हमारे साथ है। सर, आज वडोदरा के क्रिकेट जगत ने एक बड़ा सितारा खो दिया है, क्या कहेंगे? एक बहुत दुख वक्त है आज के दिन, लेकिन एक ऐसा अंशुमन भाई ऐसा काम कर रहे थे और ऐसा एक आदमी था कि उनकी क्रिकेट के फील्ड पे और बाहर भी, वो जब GSFC में भी थे, MS यूनिवर्सिटी में भी थे और हमारे बड़ौदा क्रिकेट का सेक्रेटरी भी रह चुके थे, और उन्होंने जो काम किया था उस काम को कंपेयर करना किसी से बहुत डिफ़िकल्ट काम है एक्चुअली। और आज अपने लिए एक बहुत बड़ा लॉस हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि अभी भी लास्ट में भी ही वॉज एन क्रिकेटिंग, जो क्रिकेट एसोसिएशन है क्रिकेटर्स के लिए, उसमें भी ही वॉज रिप्रेजेंटिंग ऑल ओवर इंडिया क्रिकेटर्स को BCCI में रिप्रेजेंट करते थे एक्चुअली। सर, आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी और उस वक्त क्या बात हुई थी? आखिरी बार तो हम लोग लास्ट में BCCI की मीटिंग में बॉम्बे में लास्ट मुलाकात हुई थी। उसके बाद तो उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, वो अमेरिका लंदन गए थे, उसके बाद यहाँ आए, उसके बाद मिलना बहुत मुश्किल था। अभी बीच में भी अजरुद्दीन भाई भी आए थे, हम मिलना चाहते थे, बट इट वाज डिफ़िकल्ट बिकॉज उनकी तबीयत नासाज थी, इसलिए बहुत डिस्टर्ब नहीं किया था हमने। सर, आखिरी सवाल, आज कोई ख़ास याद मन में आ रही हो उनके साथ बिताई हुई? उनके साथ हम लोग ने काफ़ी कुछ टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी वक्त, लेकिन ख़ास तो मैं बोलूँ कि हमारा जो इंटरेक्शन था MS यूनिवर्सिटी और BCA दोनों में, यूनिवर्सिटी फील्ड एजुकेशन के फील्ड में था और यहाँ क्रिकेट के फील्ड में था, और उसमें वो हमेशा कम बोलते थे, लेकिन जो भी बोलते थे वो परफेक्ट था आदमी। अंशुमन भाई एक बहुत ऑनेस्ट एंड वेरी यू कैन से एक डायनामिक पर्सनालिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया VNM से बातचीत के लिए। BCA के पदाधिकारी काशी मुनिया, जिन्होंने काफ़ी वक्त बिताया अंशुमन गायकवाड़ के साथ, और उनका कहना था कि ना सिर्फ क्रिकेट के लिए उन्होंने MS यूनिवर्सिटी में अच्छी शिक्षा के लिए भी काफ़ी काम किया, और आज इसीलिए नम आंखों के साथ उनके साथ ही उन्हें विदा कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा जन आक्रोश प्रदर्शित कर विरोध किया गया। देश में दलित समाज पर बढ़ रहे अत्याचार का विरोध करते हुए भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा रेसकोर्स के डॉक्टर अंबेडकर सर्कल पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें मैं सरकार हूं के बैनर पर चप्पल मारकर जन आक्रोश व्यक्त किया गया। बहुजन समाज और दलित समाज पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई और कलेक्टर को आवेदन पत्र भी दिया गया। आज रोज माननीय कलेक्टर साहेब श्रीने અમે આવેદન પત્ર આપવા માટે આવ્યા છીએ કે ભારતની અંદર દલિત આદિવાસી મુસ્લિમ સમાજ પર જે જુલ્મ સિતમ અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે એને તાત્કાલિક રોકવામાં આવે, અને દલિત આદિવાસી સમાજના લોકોનો જ્યારે પણ જન્મ થાય છે, જેને જન્મ દાખલો આપવામાં આવે છે, જેના દાખલા સાથે સાથે એને બંદૂકનું લાયસન્સ પણ આપવામાં આવે, જ્યારે 18 વર્ષનો થાય તો એને બંદૂક પણ સરકાર આપે, જેથી કરીને રક્ષણ કરી શકે, કારણ કે આ સરકાર હવે આમનું સંરક્ષણ કરવામાં અસક્ષમ થઈ ગઈ છે। અને જે રીતે છાસવારે આદિવાસી દલિત અને મુસ્લિમની જે હત્યાઓ થઈ રહી છે એના માટે સરકાર નક્કર કાયદા બનાવી માંગણી કરી। જો આ કાયદા ગણવામાં નહીં આવે તો ભીમ આર્મી ભારત એકતા મિશન ગુજરાત સમસ્ત ગુજરાતમાં જ્વલનશીલ આંદોલન કરવામાં આવશે, રક્ષારોકો આંદોલન કરવામાં આવશે, ગુજરાત બંધ કરવાનું આંદોલન કરવામાં આવશે। એટલે અમે કહીએ છીએ કે વહેલી તકે કાર્ય કરો, અને સાથે સાથે અમારા આરક્ષિત નેતાઓ જે 101 સાંસદ છે એ લોકોને પણ એ ડોગલાઓને કહેવા માંગીએ છીએ કે તમારી હલકી નીતિઓ લીધે, તમારી લાલચના લીધે આજે દલિત આદિવાસી અને મુસ્લિમ સમાજ જે માર ખાઈ રહ્યો છે એનું મુખ્ય કારણ તમે છે। અને તમારા માધ્યમથી કહેવા માંગે જ્યારે પણ આવા નગરમાં નેતાઓ વોટ માંગવા આવે તો આ લોકોને ચંપલ મારો, ચંપલના હાર પહેરાવવાના એમના મોં કાળા કરો, ત્યારે આ સુધરશે। ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी के नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत एक प्रेरणादायक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ हुई, जिसमें बॉलीवुड के अभिनेता अभय वर्मा ने शिरकत की। वडोदरा के हालोल रोड पर स्थित ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी हमेशा ही छात्रों को प्रेरणा देने के लिए विभिन्न आयोजन करती आई है। इसी क्रम में एक विशेष ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड के हार्ट थ्रॉब अभिनेता अभय वर्मा ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में नए प्रवेश पाने वाले छात्रों और सभी डिपार्टमेंट के छात्रों की उपस्थिति रही। अभय वर्मा ने इस मौके पर छात्रों को शैक्षिक सफर शुरू करने से पहले प्रेरणा दी और अपने कैरियर के अनुभव भी शेयर किए। इस दौरान उन्होंने डेडिकेशन और क्रिएशन पर जोर दिया। अभय वर्मा ने छात्रों को चुनौती का स्वीकार करने और उत्साह के साथ पढ़ाई पर फोकस करने की प्रेरणा दी। साथ ही भविष्य का आधार है और ऐसे में सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। ये सीख अभय वर्मा ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को दी।
इस दौरान छात्रों ने अभय वर्मा के साथ क्वेश्चन आंसर्स सेशन के जरिए बातचीत की। बॉलीवुड के उभरते सितारे से मिलकर यूनिवर्सिटी के छात्र काफी खुश देखने मिले। And yeah, I'm all smiles and my friends so special.